ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾर्ट 1 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾर्ट 2 ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਲੈਕਚਰਰ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਪਾर्ट 1 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਮਾਈਨਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਪੀ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨੋਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਦੈਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ 3/3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2/2, ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2। ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਰਡਰ 1 ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਦੈਨ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਜੋ ਆਰਡਰ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਯੂਨੀਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਏ ਐਂਡ ਰੈਂਕ ਆਫ ਅਡਜੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਡਜੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਅਡਜੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਅਡਜੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ 2 ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਅਡਜੁਆਇੰਟ ਏ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਨਾਊਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੋਨ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਐਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਨ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਰ ਹੋਣ ਦੈਨ ਅਨਨਾਊਨ, ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਨ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਨਾਊਨ, ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਨ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਐਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨਾਊਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਏ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਮਡਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ
तो आपां की फाइंड करांगे डिटरमिनेट ऑफ ए माइनस लैमडा आइडेंटी। ठीक है, तो जो इक्वल टू 0 लै लें तो कि अपने कोल बन जाती है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमीअल एंड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों तुसीं डिफरेंस याद रखना है। पॉलीनोमीअल हुंदी है जनरल आपां ए माइनस लैमडा आइडेंटी का डिटरमिनेट नूं सॉल्व करके इक्वेशन लिखते हैं। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੈੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਏ। ਕਲੇ ਮਿਲਟਨ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। तो इनकी स्टेटमेंट तुसी याद रखनी है कि एवरी स्क्वेयर मैट्रिक सैटिस्फाई ऑन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी अपने को मैट्रिक दी है उनकी जो भी आइगन वैल्यूज़ आउणगियां जां करैक्टरिस्टिक कोई भी वैल्यूज़ आउणगियां, ठीक है, उन्होंने सैटिस्फाई करेगी। इनकी स्टेटमेंट है। फिर शॉर्टकट की है आइगन वैल्यू फाइंड करने का। अपने को वेखो मेन की है आइगन वैल्यू जेकर ट्रैंगुलर दी है, अपर ट्रैंगुलर दी है या लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक दी है। ये वेखो ये ट्रैंगुलर मैट्रिक है ना, तो जो इनकी मेन डायगनल्स होंगी है वो ही अपने को होंदियां आइगन वैल्यू होंदियां। हुण जिवें 1 3 6 मेन डायगनल है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये इनदियां आइगन वैल्यू आ जाएंगियां। आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक, इस जी मैट्रिक है इनकी आप आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इहदे लई आपां की करांगे जनरल मैथड की होंदा है कि आपां पहला आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, जां आपां एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने हैं 2 माइनस लैमडा करते हैं। ठीक है, आ लैमडा जो अपने को आइगन वैल्यू आएगी उनकी आपां वैल्यू फाइंड करनी है। आइगन वैल्यू फाइंड करने लई आपां नूं क्या है ना, तो 2 फिर आपां 3 माइनस लैमडा कोई आइगन वैल्यू आपां फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इत्थे अपने को क्या आ जांदा है 2 माइनस लैमडा, फिर आपां इनूं एक इक्वेशन के रूप में चेंज करते हैं। वो प्रोसैस काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इहदे लई शॉर्टकट की है कि तुसीं की करना है, जो अपने को मैट्रिक दी हुई है उन्होंने आप डायरैक्ट इक्वेशन च लिख लेना। जे तो अपने को 2/2 मैट्रिक है दैन अपना इस ढंग नाल लिखनी इक्वेशन लैमडा स्केयर माइनस सम ऑफ जी मेन डायगनल एंट्रीज है उनका क्या आ जाना सम, जिवें 2 + 3 इहदे जे अपने को 2 ऑर्डर की मैट्रिक है तो इन्नी आएगी, जिवें 2 1 2 3 तो सम ऑफ की आ जाएगा डायगनल एलीमेंट नाल क्या आ जाएगा लैमडा प्लस की आ जाएगा डिटरमिनेट ऑफ जो भी ए मैट्रिक दी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ए फॉर 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक ली है, बट अपने को की दिता है 3 × 3 ऑर्डर दिता है। दैन अपने को की फार्मूला होएगा लैमडा दी क्यूब माइनस अपने को जी मेन डायगनल एंट्रीज है उनका सम, तो वो की आ जाएगा ट्रेस ऑफ बोल सकते हो ट्रेस ऑफ मैट्रिक, तो वो की अपने को आ जाएगा 2 + 3 + 2 नाल क्या आएगा लैमडा। फिर देखो पहला अपने को प्लस फिर माइनस फिर अपने को क्या आ जाना है प्लस, फिर अपने को आ जाना है माइनर। ठीक है, माइनर का जो डिटरमिनेट आएगा वो आ जाएगा। फर्स्ट माइनर अपने को की होएगा ए वाला होएगा 2 1 2 3, इनू सॉल्व करोगे 3 2 6 -2। ठीक है, तो अपने को क्या आ जाएगा 4, फिर नैक्सट प्लस, फिर सैकेंड माइनर आप ए वाला लेना 3 1 2 2। ठीक है, इनू सॉल्व करोगे 3 2 6 -2, तो फिर अपने को क्या आ जाएगा नैक्सट 4, फिर अपने को आएगा प्लस, इन्होंने सारे का प्लस लेना है। ठीक है, तो इत्थे अपने को आ जाएगा एक एलीमेंट फर्स्ट वाला 2 ए वाला ए लास्ट। ठीक है, तो इनका आप जोड़ा है डिटरमिनेट सॉल्व करांगे 2 1 1 2 जो कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, 2 to the 4 -1, तो इत्थे अपने को क्या आ जाएगा 3, इत्थे अपने को लैमडा की क्यूब है, इत्थे लैमडा स्केयर तो नाल की आ जाएगा इधर लैमडा। नैक्सट नाल की आ जाएगा देखो इत्थे प्लस ही फिर माइनस क्या आ जाएगा डिटरमिनेट ऑफ ए, इनका डिटरमिनेट आ जाएगा। ठीक है, जो भी इनका डिटरमिनेट आएगा देखो की आएगा डिटरमिनेट सॉल्व करने लिए आप इस ढंग नाल लिखते होंगे पहला 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 2 6 -2 तक की आएगा अपने को 4 आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ 2 इनका डिटरमिनेट सॉल्व करोगे तो अपने को क्या आ जाएगा 2 - 1 तो 1 ही आ जाएगा, फिर +1। ठीक है, तो इनू सॉल्व करांगे अपने को क्या आ जाएगा 2 - 3 तो -1 आ जाएगा। क्लीयर है, तो इक्वल टू की कर देंगे आप 0 आएगा।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 3 + 2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ प्लस करोगे 4 + 3 + 4 ठीक है। तो अपने को क्या आ जाएगा 11 लैमडा ठीक है। ये डिटरमिनेट सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -5 = 0। हुण अपने को जो भी आइगन वैल्यू दित्तियां होईयां बाय ऑप्शन आप इहदे चों भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट आप बाय ऑप्शन करांगे अपने को ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो बाय ऑप्शन आप की करांगे, जो वैल्यू दित्तियां वो फिल करांगे। जिवें पहला 5 दिता है तो आप लैमडा की वैल्यू लैमडा = 5 फिल करके देखांगे। तो इत्थे क्या आ जाएगा 5 की वैल्यू 3 करोगे तो 125 आ जाएगा। इनू सॉल्व करोगे 5 की पावर 2 25 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई करोगे 175 आ जाएगा। इत्थे 5 फिल करोगे तो 55 - 5 ठीक है। इनू सॉल्व करोगे तो दोनों का सम 180, इनका सम भी 180 तो = 0 आ गया। इट मीनस 5 तो आइगन वैल्यू होएगी। दैन आप 1 फिल करके देखांगे। फर्स्ट ऑप्शन आप फिल करते पे उत्थे लैमडा की वैल्यू 1 फिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1 - 7 + 11 - 5 तो ये भी अपने कोल की बनाएगा 0 बनाएगा। क्लीयर है। इट मीनस जी ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करैक्ट आएगी। ये वैल्यू जी इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही हैं। जी आप हुण सैकेंड बी ऑप्शन चैक करते हैं, ये जो 2 है उन्होंने तुसीं लैमडा की वैल्यू फिल करके देखना वो नॉट = 0 आएगा। क्लीयर है। तो जे आप सी ऑप्शन चैक करिए तो 0 फिल करिए लैमडा की वैल्यू फिर भी अपने को -5 जोड़ा वो बचता है। तो इट मीनस ये भी जोड़ा है सैटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आएगी। क्लीयर है। ये मैथड से जोड़ा आप सॉल्व करन दा शॉर्टकट ही आप जोड़ा है लैमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो हुण नैक्सट अपने को है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हरेक प्रॉपर्टी जी वो एक MCQ के रूप में अपने को आ जाती है, इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने तुसीं मेन याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को की है, इफ़ एवरी R + 1th ऑर्डर माइनर ऑफ मैट्रिक इज 0 दैन हायर ऑर्डर माइनर R विल बी आल्सो 0 एंड रैंक ऑफ मैट्रिक की होएगा लैस दैन और = R + 1। ठीक है। जां तो वो R + 1 होएगा जां कि इहदे तो लैस होएगा, क्योंकि जी R + 1 ऑर्डर की मैट्रिक है वो = 0 हो जाती है। दैन रैंक ऑफ नल मैट्रिक इज़ 0। याद रखना है रैंक ऑफ नल मैट्रिक जिन्होंने नील पॉइंटेड मैट्रिक का भी जोड़ा रैंक है वो की होता है 0 होता है। रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक चाहे ऑर्डर N होवे। ठीक है। ऑर्डर N इज की आएगा N आएगा। रैंक ऑफ एनी N × N नॉन सिंगुलर मैट्रिक की होएगा N आएगा। जो नॉन सिंगुलर आ गया मतलब डिटरमिनेट नॉट = 0 आ गया। तो जो डिटरमिनेट नॉट = 0 होता है तो जो रैंक होंदा है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक होंदा है। दैन द रैंक ऑफ मैट्रिक इज सेम एज अ नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो वैक्टर इन मैट्रिक और नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वैक्टर इन द मैट्रिक। क्योंकि जो लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम होंदे है जां लीनियर इंडिपेंडेंट रो होंदियां। ठीक है। तो रैंक उनते सेम होएगा। ठीक है। नॉट = 0 बनाएंगे, डिटरमिनेट नॉट = 0 आएगा। दैन द रैंक ऑफ मैट्रिक ए डज नॉट चेंज बाय द प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक। देखो अपने को चाहे किसी भी मैट्रिक है जिवें रैंक ऑफ ए है। ठीक है। इनू आप चाहे किसी भी टर्म ना पोस्ट मल्टीप्लाई करिए जां प्री मल्टीप्लाई करिए तो रैंक चेंज नहीं होएगा। जिवें हुण मल्टीप्लाई AP जे आप प्री मल्टीप्लाई किया और P। ठीक है। तो इधर आप की है प्री मल्टीप्लाई किया, इधर की है पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो वो दोनों का रैंक ही होएगा सेम ही रहेगा। रैंक ऑफ AB दोनों सेम ऑर्डर दे आ तो रैंक ऑफ A + B हमेशा की आएगा लैस दैन और = रैंक ऑफ A + रैंक ऑफ B। जी हुण अपने को A एंड B मैट्रिक है, मैट्रिक का जी मल्टीप्लिकेशन लेने हैं तो रैंक की आएगा मिनीमम ऑफ रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B। मल्टीप्लिकेशन च उनका की हो जाता है मिनीमम हो जाता है। तो रैंक AB का जोड़ा रैंक ऑफ A तो छोटा आएगा, रैंक B तो छोटा ਜਾਂ इक्वल आएगा। ये कोई एनी मैट्रिक है तो रैंक ऑफ A तो रैंक ऑफ A ट्रांसपोज दोनों का रैंक इक्वल ही होएगा। जे अपने को रैंक ऑफ A एंड A ट्रांसपोज पुछ लेंगे है दैन भी आएगा रैंक ऑफ A ही आएगा। ए बी एनी मैट्रिक दैन रैंक ऑफ A ट्रांजुगेट इक्वल टू क्या होएगा रैंक ऑफ A। रैंक ऑफ A ट्रांसपोज ਜਾਂ रैंक ऑफ A ट्रांजुगेट रैंक ऑफ A दे इक्वल ही हुंदा।
जे कोई मैट्रिक है m मल्टीप्लाई n ऑर्डर की, दैन रैंक ऑफ ए की होएगा मिनीमम ऑफ mn होएगा। m तो भी छोटा होएगा ਜਾਂ इक्वल होएगा ਜਾਂ n तो छोटा होएगा तो इक्वल होएगा। ए भी 2n रोड स्केयर मैट्रिक है। दैन रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, वो ग्रेटर होएगा जे आप इहदे चों माइनस कर दिंदे आ। देखो ये प्रॉपर्टी इहदे नाल मैच करदी है जो आप 8th प्रॉपर्टी की है। तो ये अपने को n रोड स्केयर मैट्रिक दी है, तो आप जे n माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल अपने को लग गया ना, ठीक है। तो ये अपने को की सी सम। दैन अपने को रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कैन नॉट बी 1। ये याद रखना है कि जो अपने को मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दी है उनका रैंक कदे भी 1 नहीं हो सकता। नैक्सट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर। देखो आप रैंक किया एंड आइगन वैल्यू की, इंदियां भी प्रॉपर्टीज आप याद करनी है। कोई भी स्केयर मैट्रिक ए है तो इनका ट्रांसपोज ए है, ठीक है। तो दोनों दी आइगन वैल्यू इक्वल होंदियां, ठीक है। ए दियां एंड ए ट्रांसपोज दियां जिहड़ियां आइगन वैल्यू इक्वल होंदियां। सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एनी स्केयर मैट्रिक की हुंदा है ट्रेस ऑफ मैट्रिक। ये प्रॉपर्टी बहुत हैल्प करती है। कई बार अपन कोई MCQ आ जाता है जिंदे विच अपने कोल की दिता है सम ऑफ आइगन वैल्यू दिता होंदा है, ठीक है। तो आप की है ट्रेस ऑफ ए जिहड़ा है वो बना सकते हैं। दैन एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू की हुंदा डिटरमीनेट ऑफ मैट्रिक ए दे। ये आप सम सॉल्व करने लई इन्हां चीज़ां दा यूज़ करांगे कि जिहड़ा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किंदे इक्वल हुंदा डिटरमीनेट ऑफ मैट्रिक ए। जी हुण λ1 λ2 λn आइगन वैल्यू है स्केयर मैट्रिक ए दियां फॉर एनी स्केलर के। तो ये प्रॉपर्टीज तुसीं याद रखनी है। द आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू KL R। जिवें हुण जो भी टर्म्स की आइडेंटिटी दी है ना इत्थे अपने कोल, तां उहदे विच की है वो चीज़ प्लस हो जाएगी। λ1 प्लस के हो जाएगा, λ2 प्लस के आइडेंटिटी हो जाएगा। जिहड़ी भी टर्म आपां इहदे च प्लस करांगे ए च, वही टर्म जिहड़ी है आइगन वैल्यू च प्लस हो जाएगी। जे मल्टीप्लाई करोगे तो की हो जाएगी आइगन वैल्यू च मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक है तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स की होनी है, जो भी अपने आइगन वैल्यू ऑफ ए है उनका की हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैक्टर x1 x2 xn corresponding to distant आइगन वैल्यू ऑफ एनी स्केयर मैट्रिक इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो भी आइगन वैल्यू आप वैक्टर अपने को आउंदी है डिफरेंट जी आइगन अपने को वैल्यूज दित्तियां उनके जी आइगन वैक्टर आउंदी है वो की हुंदी है लीनियरली इंडिपेंडेंट हुंदी है। इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ स्केयर मैट्रिक ए दैन द आइगन वैक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज यूनीक अप टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी जी लैम्डा आइगन वैल्यू दी है स्केयर मैट्रिक की, तो जे आप उनका आइगन वैक्टर फाइंड करते हैं तो वो की होएगा यूनीक होएगा। नैक्सट अपने को जो सम आए है मैट्रिक्स को लैके आप सॉल्व करांगे। पहला आप करांगे 3582 का सल्यूशन जो अपना एग्जाम होया सी फॉर मास्टर कैडर लई 3582 पोस्ट सी जिंदे विच। तो फस्ट सम की सी मैट्रिक दा द मैट्रिक आपन दित्ती हुई सी, आपन पुछया सी कि केड़ी मैट्रिक है, सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है, या स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो ये सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक तो हो नहीं सकती, क्यों? इहदे विच जो एंट्रीज है वो अपने को की है इयोटा नाल दित्तियां होईयां। आपां चैक करांगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। इहदे लई आपां की करांगे पहला ए ट्रांसपोज करोगे। ए ट्रांसपोज आप प्रीवियस वीडियो किया है पार्ट 1 च, तो क्या आ जाएगा आयोटा जो रो है वो की बन जाएगा कॉलम 1 - 2 आयोटा -1 - 2 आयोटा की आ जाएगा 0। जो आप ट्रांसपोज कर लिया फिर आप इनका की करांगे कंजुगेट, तो अपने को ए ट्रंजुगेट बन जाएगा ना। स्क्यू हर्मिशियन तो हर्मिशियन लिए अपन ए ट्रंजुगेट देखना पैंदा। तो जो एयोटा है वो की आ जाएगा माइनस च साइन चेंज हो जाएगा। इत्थे अपने को 1 प्लस हो जाएगा 2 एयोटा, ये अपने को -1 + 2 एयोटा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। जो हुण आपां ये इक्वेशन देखांगे इहदे विचों आपां माइनस कढ लांगे कॉमन। जो माइनस कॉमन कढ लोगे तो अपने को की बन जाएगा एयोटा, इत्थे अपने को 1 तो -2 एयोटा आ जाएगा, इत्थे -1 - 2 एयोटा, ठीक है। इत्थे अपने को की रह जाएगा 0। तो ये अपने को यही ए मैट्रिक बन गई, ठीक है। तो ए ट्रंजुगेट इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ ए। दैन ये मैट्रिक की हुई अपने को स्क्यू हर्मिशियन। इहदी ऑप्शन जो स्क्यू हर्मिशियन सी वो बिल्कुल करैक्ट सी।
नैक्सट है ए स्केयर मैट्रिक दैन ए माइनस ए ट्रांसपोज। अपने को ए कोई स्केयर मैट्रिक दिती सी तो उन्होंने पूछा सी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज किहड़ी मैट्रिक होएगी। देखो ये कन्फ्यूज़ करने वाला सम सी ए माइनस ए ट्रांसपोज पूछा आपां किहड़ी मैट्रिक है, आपां की करांगे इहदा ट्रांसपोज कर देंगे। जो इहदा आपां ट्रांसपोज करांगे तो क्या आएगा ए दी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज दी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस की आ गया ए, इहदे विचों आपां माइनस कॉमन कढिया तो अपने कोल की बनेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज जे आप सारे नू ए लै लें कैपिटल ए तो इज इक्वल टू की आ गया, जे इनका ट्रांसपोज किया तो इज इक्वल टू की आ गया माइनस ऑफ ए। आह टर्म जी है माइनस च आ गई ना, दैन ए की बन गई स्क्यू हरमीशियन। डी ऑप्शन सही सी बिल्कुल इहदे चो। क्लीयर है। नैक्सट सी A and B are two matrix such that AB is equal to B and BA is equal to A, then A square अपने को पूछा सी तो आप A square किवें फाइंड आउट कर सकते सी। देखो A square is equal to आप इनू A डॉट A लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन च। हुण A जो है वो अपने को दिता है आ A एज इट रहन तो आ A अपने को दिता है BA, इत्थे दिता है ना कि A इज इक्वल टू BA। दैन अपने को बनता है जो ए बी ए आ। ठीक है, अपने को ए बी नू आपां की लै सकते हैं बी, इनू आपां फिर बी ए लिख सकते हैं। आ ए बी नू आपां लिखता बी, तो बी ए इज इक्वल टू फिर अपने को आ जाता है ए। इट मीनस ए स्केयर इज इक्वल टू की बन जाता है ए। सी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आएगा। 82 सी द वैल्यू ऑफ इस जो डिटरमिनेट की वैल्यू देखनी सी, इहदे विच आपां की करांगे, इत्थे अपने को 1/a है ना तो आप सारी टर्म नू ए नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, सैकेंड सारी रो नू बी नाल, एंड जो थर्ड रो है इनू सी नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आप मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थे आपां नू 1/ABC नाल डिवाइड भी करना होएगा। डिटरमिनेट के अंदर की आ जाएगा 1/a है ना, तो इनू ए नाल मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, इत्थे अपने को ए दी क्यूब आ जाएगा, इत्थे अपने को ABC, फिर आप इस रो नू बी नाल मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थे अपने को 1 बनेगा, इत्थे बी दी क्यूब, इत्थे अपने को ABC। उवें जो थर्ड रो है इनू आपां सी नाल मल्टीप्लाई करांगे। देखो जो थर्ड कॉलम है ABC है ना, इहदे विचों ABC आपां कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो इत्थे अपने को 1 1 1 बच जाएगा। देखो जदों भी 2 कॉलम या 2 रोज इक्वल आ जांदियां तो डिटरमिनेट की बनता है 0। इहदे जिहड़ा ऑप्शन 0 सी वो अपने को बिल्कुल करैक्ट सी। नैक्सट है the equation this have no solution, one solution, two solution, infinite many solution। आप solution solve करना सी, इहदे लई आपां की करांगे, पहला 2 इक्वेशनस लै लांगे। ठीक है, इनू सॉल्व करोगे तो अपने को एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एक्स की वैल्यू अपने को आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 एंड वाई इज इक्वल टू 8। जो 6 ते 8 आया इनू आप इस थर्ड इक्वेशन फिल करांगे। देखो इत्थे आप भर देंगे 6 एंड इत्थे अपने को जो वाई की वैल्यू है वो अपने को की आई है 8 है। ठीक है, माइनस ऑफ 8 आएगी सॉल्व करन ते इन्हां दोनों इक्वेशनस नू, तो वो वैल्यू जी है थर्ड इक्वेशन नू सैटिस्फाई करूगी। जो सैटिस्फाई करूगी इट मीनस ओनली 1 सोल्यूशन आएगा, अपने को बी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आएगी। 84 नंबर सम सी इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए where A is 3 multiplied 3 matrix, A transpose denote the transpose of A, then determinant of A। देखो ये मैट्रिक की शो करती पई है, दिस वन इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, तो ऑर्डर अपने को की है 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये ऑड ऑर्डर है, तो स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर अपने को दी हुई है, तो इनका डिटरमिनेट की होंगे 0। ये प्रॉपर्टी होंगी है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक जी है डिटरमिनेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। नैक्सट आप फाइंड करना है द रैंक ऑफ द मैट्रिक। रैंक ऑफ मैट्रिक पहला आप दसिया भी सीधा आप डिटरमिनेट सॉल्व करना, जो तुम इन्हें डिटरमिनेट सॉल्व करोगे तो अपने को क्या आ जाएगा, डिटरमिनेट सॉल्व करना सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा। ठीक है, तो अपने को की बनेगा 1 1 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 4 प्लस 2 4 माइनस 2, तो इज इक्वल टू की बनेगा अपने को नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो रैंक है वो अपने को की आएगा 3। सी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आएगी। आ सम 84 आप सॉल्व कर चुके हैं। नैक्सट 85 सिर्फ ए सिंगुलर मैट्रिक दैन एडजॉइंट ए।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ए कोई सिंगुलर मैट्रिक है दैन एडजॉइंट ए फाइंड करना है। सिंगुलर मैट्रिक की होंगी है जिनका डिटरमिनेट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ए सिंगुलर मैट्रिक है यानी कि डिटरमिनेट इक्वल टू 0 आ गया। जो हुण आपां एडजॉइंट आपन पता डिटरमिनेट उन्हें क्या ना कि इज सिंगुलर मैट्रिक एडजॉइंट ए, डिटरमिनेट ऑफ एडजॉइंट ए देखो डिटरमिनेट ऑफ एडजॉइंट ए अपने कोल की आ जाएगा डिटरमिनेट ऑफ ए दी पावर n-1। जी ए अपने को डिटरमिनेट 0 है तो इट मीनस डिटरमिनेट ऑफ एडजॉइंट ए की आ गया 0। जे डिटरमिनेट ऑफ एडजॉइंट ए 0 है इट मीनस ए की है सिंगुलर मैट्रिक। ए ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट है। नैक्सट द वैल्यू ऑफ ये बहुत सिंपल सम है, डिटरमिनेट सॉल्व करने लिए क्या आपां नूं तो इनू आपां इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कि आएगा सीकेंड स्केयर एक्स माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स तो इज इक्वल टू की बनाएगा 1। क्लीयर है, जो 1 ऑप्शन से वो बिल्कुल करैक्ट से। नैक्सट जो मस्ट कैडर 3704 है तो वो सी अपने को उनका देखो जो 3582 का सम आया सी उनके भी आपको फर्स्ट सम जोड़ा है वो यही सम पूछा सी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हरमिशियन एंड स्क्यू हरमिशियन बट मैट्रिक की है चेंज है तो उन्हें आप पहला की किया सी ट्रांसपोज कर लिया सी फिर उनका की है कंजुगेट करता सी। इवें इसे मैट्रिक का करोगे तो तुहाडे कोल की बनेगा माइनस ऑफ ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बनेगा तो जे ए बनेगा तो ये आएगा स्क्यू हरमिशियन। नैक्सट है अपने कोल ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेट ऑफ ए इज -1 डिटरमिनेट ऑफ बी इज 3 दैन डिटरमिनेट आप फाइंड करना है 4ab का। इनका आप डिटरमिनेट सॉल्व करना तो जो अपने कोल स्केलर हुंदा है जिवें 4 है तो इनका ऑर्डर की हो जाएगा जो मैट्रिक का ऑर्डर है, मैट्रिक का ऑर्डर अपने को 3 है ना तो 4 की पावर 3 आ जाएगा नाल क्या आ जाएगा डिटरमिनेट ऑफ ए डिटरमिनेट ऑफ बी तो 4 की पावर 3 कर दोगे तो अपने को 64 आ जाएगा। डिटरमिनेट ऑफ ए -1 है डिटरमिनेट ऑफ बी की है 3 है, इनू मल्टीप्लाई करांगे तो -192 जी ऑप्शन है वो बिल्कुल करैक्ट आ जाएगी। उस तो नैक्सट है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक दैन ए इनवर्स ए इनवर्स उन्होंने पूछा है कि केड़ी मैट्रिक होएगी जे ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक है दैन ए इनवर्स इज आलसो नॉन सिंगुलर मैट्रिक होएगी। जिवें आपां जॉइंट ए मैट्रिक सॉल्व की है ना प्रीवियस जो सोल्यूशन होया 3582 का। नैक्सट है इफ ए स्केयर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 दैन इनवर्स ऑफ मैट्रिक। देखो जो इवें दिता है तो आप इनवर्स किवें बना सकते हैं, जो है दिता है अपने को एक पॉलीनोमियल दी है तो आप की करांगे आइडेंटिटी इधर रहन देंगे जो टर्म्स है उधर लै जाओगे कि आएगा ए माइनस ए स्केयर बन जाएगा, इधर आप प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स नाल आइडेंटिटी नूं मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स ही बनेगा, ए इनवर्स नूं ए ना मल्टीप्लाई करोगे तो की बनाएगा आइडेंटिटी, ए स्केयर नूं ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई करोगे तो की बनेगा ए ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट से। 6th सम अपने को की सी इफ ए एंड बी आर 3 मल्टीप्लाई 3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेट ऑफ बी दैन अपने को कितनी सारी ऑप्शनस दित्तियां सी तो 4 ऑप्शन जो कि करैक्ट सी डी ऑप्शन ए एंड बी कैन बी डिफरेंट मैट्रिक। जे दोनों का डिटरमिनेट इक्वल होंदा तो अपने को जिहड़ियां ए ते बी वो डिफरेंट मैट्रिक भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो इक्को तरह दी मैट्रिक्स होणगियां, कोई भी तो जिहड़ियां मैट्रिक्स है डिफरेंट मैट्रिक्स है उन्होंने डिटरमिनेट इक्वल आ सकता है। 7th सम द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनका अपन सोल्यूशन पूछा सी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है 1 सोल्यूशन है तो इहदे लई आपां की करना सी देखो आप जिहड़ी कोफिशिएंट है ये आपां लै लैंदे A1 A2 तो अपने कोल की है A3 तो इत्थे आपां की लै लांगे B1 B2 B3 ठीक है। तो इहदे च आपां नूं डायरैक्ट ही पता देखो 1/3 इत्थे भी की बनाउंदा 1/3 तो अपने कोल A1 B1 इक्वल टू क्या होंदा A2 B2 इज इक्वल टू क्या होंदा है C3 अपॉन A3 अपॉन B3 तो ऑल सारे इक्वल जो सारे इक्वल आ जाता की बनता इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्लीयर है, तो इनकी ऑप्शन जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन सी वो करैक्ट सी। नैक्सट है इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ मैट्रिक ए इज 0 दैन रैंक ऑफ ए कोई भी माइनर जिहड़ा ऑर्डर आर दा वो 0 हो जाता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक की आएगा लैस दैन ए आएगा, जो भी आर रैंक है उनके तो लैस आएगा तो दैन अपने को रैंक ऑफ ए इज लैस दैन आर आएगा। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक ये अपने को ट्रायंगुलर मैट्रिक दी है ना
ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ A11 A22 ਐਂਡ A33। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ 12/7/2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਮ ਸੀ A and B are two square metric of same order then A equal to 0 B equal to 0 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B option ਸੀ A 0 ਔਰ B equal to 0 C ਸੀ determinant of A 0 and determinant of B 0 ਜਾਂ ਔਰ ਦੀ option ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ D option ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ 0 A ਦਾ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B equal to 0। D option ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗੀ। 127 ਕੀ ਹੈ, if D is the determinant of square metric A of order n then determinant of adjoint A। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ determinant of A ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ adjoint A ਦਾ determinant ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ determinant of adjoint A ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ determinant of A ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲ n ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗੀ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ D ਦਿੱਤਾ ਨਾ D ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। 128 ਕੀ ਹੈ is an invertible metric and B is any metric then rank of A ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਕ ਆਫ ਈਦਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਬੀ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਰੈਂਕ ਆਫ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਂਕ ਆਫ A ਵੀ ਰੈਂਕ ਆਫ B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ B ਇਜ਼ ਐਨੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੌਰੀ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ A ਇਜ਼ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ B ਇਜ਼ ਐਨੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੈਂਕ ਆਫ B 'ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 129 ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ the image of the point is one under the transformation। ਇਸ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਜੋ x ਹੈ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ y ਹੈ 5 ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 + 4 5 ਦਾ 20 ਆ ਜਾਣਾ ਕੌਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5। ਤਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। 30 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 137 ਇਹ ਰੀਅਲ ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ Q is equal to x dash AX is positive defined। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਫ ਏਰੀਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ 0। B ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਬਟ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸਮ ਆਪਣੇ 2 ਹੈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਫ ਈਵਨ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ 0 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। if A is n multiply n metric then rank of A less than or equal to minimum of mn। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ ਆਰਥੋਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਲਵੇਜ਼ 1। ਇਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥੋਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ +-1 ਓਨਲੀ 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। if homogeneous system of equation AX is equal to 0 is determinant not equal to 0 system has infinitely many solution। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। if lambda is the characteristic roots of metric A then A inverse characteristics of root A inverse। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। D ਹੈ determinant of nil pointed metric has its modulus unity।
ਨੀਲਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਡੂਲਸ ਯੂਨਿਟੀ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, if a real quadratic form can be expressed as a sum or the difference of square of new variable by means of any real non-singular linear transformation, then the later quadratic expression जो बचता है उन्होंने क्या आप बोलते हैं canonical form of quadratic form। पहला जो अपने को quadratic form है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਵਾਈ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਬੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਡਾਇਗਨਲ। ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 2h, ਇੱਥੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਡਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, then coefficient of x square, coefficient of y square, coefficient of z square, ये अपने कोल की बन गए डायगनल। इत्थे अपने कोल की आ गया एच एफ जी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इन्हू तुसी नोट रखना है, इत्थे नाल 2 नाल मल्टीप्लाई हुंदा, ठीक है। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਐਡਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MCQ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ MCQ ਬਣਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਇਨ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਡਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟ, ਸੈਮੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਐਂਡ ਇਨਡਿਫਾਈਨਡ ਰੀਅਲ ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਏ ਐਕਸ ਬੀ ਰੀਅਲ ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਰੈਂਕ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੈਂਕ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਮੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਬਟ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ MCQ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N ਹੁੰਦਾ, P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, R ਲੈਸ ਦੈਨ N ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N, ਜੋ P ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, R ਲੈਸ ਦੈਨ N ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ P ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। If canonical form has both positive and negative terms, then quadratic form is said to be indefined, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਡਿਫਾਈਨਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਕੁਐਡਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਏ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ is said to be positive defined if all the eigen value, ਜੋ ਵੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਜਾਣ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਜਾਣ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਮੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ 1 ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਮੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਡਿਫਾਈਨਡ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮ ਆਫ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਆਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਦਰ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਡਿਫਾਈਨਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ,
ठीक है। ये मेन प्रॉपर्टीज जी इलैक्ट्रिक कैटर वास्ते हैल्पफुल है। जे वीडियो पसंद आवे लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो।